Hello students, come to the next topic of our chapter tertiary and quaternary activities. So today in this chapter we are going to completing the chapter via the quaternary activities and the quaternary activities, and after this the digital divide. ठीक है, the digital divide, these are the three topics which we are going to cover in this period. ठीक है, so बच्चों quaternary activities, if we are talking about the tertiary activities, so tertiary activities क्या होती है, बड़ी कॉमन होती है. tertiary activities हम बहुत छोटे क्लासेस में हम पढ़कर आते हैं. we have three types of economic activities, primary, secondary and tertiary activities. ठीक है, ये activities तो हम पढ़ते हैं, लेकिन हमारे लिए नई टर्म जो है that is the quaternary activity, है ना. quaternary activity हम लोगों के लिए थोड़ा सा नया टर्म है, लेकिन don't be get confused, it is somehow the part of the tertiary activity. पहली चीज़ ये tertiary activities का ही एक पार्ट है. हमने इसको थोड़ा सा लेवल ऑफ डेवलपमेंट के बिहार पर उसको tertiary से सेपरेट किया है. ठीक है, so come to the quaternary activities. These type of activities are also known as knowledge oriented. ठीक है, इन्हें quaternary activities को हम knowledge oriented activities कहते हैं. It involves collection, production and dissemination of informations. ठीक है, dissemination what it means, the distribution. ठीक है, the distribution of information to other and other places, different places. This is known as quaternary activities. यानी quaternary activities involve collection. ठीक है, collection of information, data, whatever, productions, whatever the services has been produced and reaching, and disseminations, that is to information, division or distribution of the information, that is known as the quaternary activities. ठीक है, स्पेशलाइज्ड नॉलेज एंड स्किल्ड पीपल आर रिक्वायर्ड. यानी कि टर्शियरी एक्टिविटीज़ में आपको हाईली स्किल्ड एंड नॉलेजेबल पर्सन्स की ज़रूरत होती है. सो दे आर नॉट टाइट. व्हाट इज़ द बेस्ट फीचर रिलेटेड टू द टर्शियरी एक्टिविटीज़. बच्चों, इस टर्शियरी एक्टिविटीज़ को हम जो है कहते हैं कि आज हम कहते हैं कि मौसम ख़राब है तो हम ये काम नहीं कर सकते हैं, बट दीज टाइप ऑफ सर्विसेज, दैट इज़ द quaternary services, इनके लिए ऐसा कोई भी बंधन नहीं है. मीन्स दे आर नॉट अफेक्टिंग. ठीक है, दे आर नॉट टाइड टू द रिसोर्सेज अवेलेबल है या नहीं, रिसोर्सेज पहुंच रहे हैं या नहीं, यानी कि डिलीवरी ऑफ द रिसोर्सेज एट द टाइम इफ नॉट रीचिंग दैन दे कैन नॉट बी सेंडेड टू सम अदर एरियाज ऑल्सो. ठीक है, they are not affected, they are not tied with the resources, they are not getting affected by the environment and necessarily localized by market. It is also not necessary that the localized market should be nearer to it. आज आप यहाँ रहकर इंटरनेशनल लेवल पर भी quaternary एक्टिविटीज़ के थ्रू काम कर सकते हैं. ठीक है, सो वी आर टॉकिंग अबाउट द नॉलेज ओरिएंटेड लैंग्वेज वेयर यू डोंट रिक्वायर सच काइंड ऑफ रिसोर्सेज टू डिलीवर और टू अदर सर्विसेज पार्ट, बट इन दिस वी आर कलेक्टिंग द रिसोर्स डाटास एंड एनालिसिस. आफ्टर दिस you are not depending over the resources, environment and the local market, though also keep on going with your work. During COVID बच्चों हमने देखा है कि those people who are linking to the quaternary activities, they are not affecting by their jobs. ठीक है, कोविड पीरियड में हमने देखा many of the people get unemployed. ठीक है, बहुत सारे अनएम्प्लॉयड हो गए हैं. उसके साथ साथ सब लोगों की जो एम्प्लॉयमेंट थोड़े बहुत भी बचे हैं उनकी एम्प्लॉयमेंट में भी इफेक्ट आया है. बट these quaternary activities people are not mostly or mostly affected by this because they are not doing such kind of work whether they are depending on the resources and others. ठीक है, समझ गए होंगे आप कंसेप्ट के. इस तरीके की चीज़ों पे हम डिपेंडेंट इसमें नहीं. ठीक है, नाउ द अनदर डिविजन ऑफ द quaternary एक्टिविटी, इसी से quaternary एक्टिविटी से थोड़ा और लेवल ऊंचा लेकर हम चलते हैं एंड दैट इज नोन एज quaternary एक्टिविटी. क्वालिनरी एक्टिविटीज़ में हम ऐसा कहते हैं कि क्वालिनरी एक्टिविटीज़ में जो लोग काम करते हैं या क्वालिनरी एक्टिविटीज़ टाइप जो काम करते हैं उन लोगों को हम गोल्ड कॉलर प्रोफेशनल्स कहते हैं. ठीक है, ये भी नॉलेज बेस्ड होता है. ये नॉलेज बेस्ड जो होता है दैट इज़ आउटसोर्सिंग. तो हमारे लिए एक शब्द है दैट इज़ आउटसोर्सिंग. आउटसोर्सिंग मीन्स विदाउट रीचिंग टू सम प्लेस you can
गेट द नॉलेज ऑफ दैट एरिया। आउटसोर्सिंग आपका बिना कहीं पर भी जाए, यू आर डूइंग द वर्क टू दैट प्लेसेस, यू आर गेटिंग द डाटा कलेक्शंस एंड अदर्स, एंड दीज टाइप ऑफ जॉब्स आर नोन एज द क्वाइनरी एक्टिविटीज। क्वाइनरी एक्टिविटीज में हम दो तरीके से डिवाइड कर सकते हैं इसको, बीपीओज एंड केपीओज। बीपीओज दैट इज बिजनेस जो ओरिएंटेड है, ठीक है, एंड केपीओ दैट इज नॉलेज ओरिएंटेड, ठीक है। तो बिजनेस ओरिएंटेड और नॉलेज ओरिएंटेड जो वर्क है वो किए जाते हैं, लेकिन बीपीओज और केपीओज को अगर हम कंपैरिजन करें कि इन दोनों में सबसे अच्छा कौन सा है, तो बिजनेस जो बीपीओज हैं दे आर नॉट नेसेसरी टू हैविंग द हाई स्किल्स। जैसे हम कहते हैं कॉल सेंटर में लोग काम करते हैं, स्पेशली हम जो क्वाइनरी एक्टिविटीज़ की बात कर रहे हैं वो बात इसी बिहाफ पर कर रहे हैं कि दोज पीपल हु आर सर्चिंग टू गेटिंग द लेबर्स विद द लो कॉस्ट एंड डू देयर वर्क, नो कंडीशन फ्रॉम वेयर दे आर डूइंग द वर्क, ठीक है, वो कहीं से भी उनके लिए काम कर सकते हैं। तो लाइक कॉल सेंटर्स हैं, एनी ऑफ द कंपनीज आर सेटिंग डिफरेंट काइंड ऑफ कॉल सेंटर्स इन डिफरेंट नेशंस। व्हाट दे आर डूइंग, दे आर गेटिंग दैट प्लेसेस द लोकल पर्सन्स, एजुकेटेड जो बच्चे हैं उनको वो लेते हैं, हायर दैम लो वेजेस लो सैलरीज पर, उनको जो अपने देश के कंपैरिजन में उनको लो वेजेस या लो सैलरीज देकर वो अपने सारे काम कराते हैं। कॉल सेंटर्स आर सच काइंड ऑफ एग्जांपल्स व्हिच आर बेस्ड ऑन नॉलेज बट नॉट नेसेसरी हाई स्किल देयर। बट अगर हम केपीओज की बात करें, ठीक है, केपीओज की बात करें तो यस वी कैन से दैट रिसर्च एंड डेवलपमेंट and it is necessary to having the people who are working in the KPOs, they must be highly skilled, highly educated, highly expertised, ठीक है। so like banking है, e-learning है, legal professions हैं, these are the work who are the part of the KPOs, ठीक है। अब जैसे हम कहते हैं इसमें जो पहले से आइडियाज एग्जिस्ट करते हैं, न्यू आइडियाज इम्प्लीमेंट होते हैं, ये सभी आपकी क्वाइनरी एक्टिविटीज़ का पार्ट होते हैं। भाई बहुत बड़े लेवल पर इसको काम करते हैं। मीन सम ऑफ द पीपल यूज टू प्लान रिलेटेड टू द कंट्री, अगर कंट्री से रिलेटेड प्लान बना रहे हैं डेफिनेटली यू रिक्वायर लॉट्स ऑफ नॉलेज, यू रिक्वायर लॉट्स ऑफ स्किल टू इम्प्लीमेंट सच काइंड ऑफ लॉस टू द होल कंट्रीज। तो प्लान बनाना, उसको इम्प्लीमेंट करना इट्स नॉट द ईजी टास्क, उसका इफेक्ट, उसका साइड इफेक्ट दोनों चीज़ें देखकर फिर वो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नाउ कम टू द अनदर टॉपिक वी आर हैविंग, दैट इज द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज डिजिटल डिवाइड, ठीक है। डिजिटल डिवाइड और वी कैन से इन दिस बेसिस जो अब तक हमने क्वाइनरी एक्टिविटीज़ और क्वार्टरनरी एक्टिविटीज़ को एक्सप्लेन किया उसके बेसिस पर ही हम बात कर रहे हैं अभी तक। मीन्स डिजिटल, आज टुडेज वर्ल्ड इज़ द डिजिटल वर्ल्ड, ठीक है। हम डिजिटल हो चुके हैं, हम मीन्स वर्चुअली हम एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, हमारे काम हो रहे हैं बिना रुके, ठीक है। तो दिस इज़ बिकॉज हाउ मच वी आर डिपेंडिंग ओवर दीज इलेक्ट्रिकल गैजेट्स, कंप्यूटर्स, ठीक है। तो ऑल ओवर द थिंग्स आर नोन एज द ICT, दैट इज इंफॉर्मेशन जो कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है वो आप लोगों की कितनी ज़्यादा हायर है। सो ICT अगर किसी भी देश की है बच्चों, तो ICT जो होगा इट हैज़ नॉट बीन controlled by a single person or some individuals, it can be controlled by the government, यानी कि here the government policies are necessary, how much they expand over these ICT part, जितना वो उसको प्रमोट करेंगे उतने ही लोग उसमें शामिल होंगे और उतना ही देश डेवलप्ड की तरफ जाएगा। हम ये कह सकते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया में भी ले लीजिए या दूसरे देशों में भी, फॉर एग्जांपल रशिया में ले लीजिए, एक रशिया के छोटे गाँव में ले लीजिए, एक आप उसके मेट्रोपॉलिटिकल सिटीज़ में ले लीजिए, क्या होगा, मेट्रोपॉलिटिकल सिटीज़ मस्ट बी सीन मोर डेवलप्ड एज कम्पेयर टू दी रूरल पार्ट। ऐसे ही आपके देश में है, मेट्रोपॉलिटिकल सिटीज़ जो होंगे वो ज़्यादा डेवलप, क्यों, वहाँ पर आपको ये डिजिटल डिवाइड एक्टिविटीज़ काफ़ी देखने को मिलेगी एज कम्पेयर टू द रूरल पार्ट, ठीक है। तो अगर रूरल पार्ट में भी गवर्नमेंट ये डिजिटल जो सर्विसेज हैं वो प्रोवाइड कराए, डिजिटली लोगों को ज़्यादा इन्फॉर्म करें, नॉलेज दे, तो लोग वहाँ पर भी होंगे एंड दे स्टार्ट यूजिंग ऑल द डिवाइसेस, ठीक है। सो होल इन होल द टर्शियरी एंड क्वार्टरनरी एक्टिविटीज़ चैप्टर आप लोगों का खत्म हो गया। आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट चैप्टर हम ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन स्टार्ट करेंगे। ओके बच्चों, थैंक यू।